السلام علیکم. میرا نام عمران گل ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچر ہوں اور لاہور سے ہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بائبل مقدس کا کئی دفعہ مطالعہ کیا ہے اور چونکہ میں تھیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا ہے. اور اس میں جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا آپ کا نام کیا آپ نے کہا؟ عمران گل. آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ آئی ایم کرسچن. کرسچن، اوکے. کیا سوال واپس سے دہرائیں گے؟ جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم اے ٹیچر، تھیولوجیکل ٹیچر، اور بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا. لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انجیل، توریت اور زبور میں ہدایت ہے، نور ہے، راستہ ہے، سیدھی راہ ہے. سورہ مائدہ ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ مومن ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو کیوں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ جب تک ان چاروں کتابوں پہ ایمان نہ لے آئیں ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی کیونکہ یہ کتابیں موجود ہی نہیں ہیں. تورات، زبور، انجیل موجود ہی نہیں. ابھی جو موجود ہے اس کی بگڑی ہوئی شکل. آج کے تاریخ میں آپ ٹیچر ہیں، میں طالب علم ہوں. آپ ٹیچر ہیں نا؟ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن. جو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ انجیل اللہ کی وحی ہے، ہم انجیل کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام، بائبل کو نہیں. سر جو اوریجنل ہے وہ پڑھیں آپ جا کے. جو بھی اوریجنل ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں نا، میں نے کہتا ہوں کرسچن اسکالر کہتے ہیں بھائی. آپ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ یہ تبدیل ہوگی. ایک آیت قرآن میں نہیں ہے جو کہے کہ یہ تبدیل ہو گئی ہیں، بلکہ وہاں پہ تو اچھے پازیٹیو ورڈز میں ہے کہ اس میں راہ ہے، ہدایت ہے، نور ہے. ایک آیت کیا بولتا ہے؟ ایک آیت نہیں یا تبدیل ہوئی. ایک آیت احادیث میں ہوگا. لیکن ابھی میں بولتا ہوں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79. فویل للذین یکتبون الکتاب فی ایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. وہ لوگوں کو کہو جو اپنے ہاتھ سے بک لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے ہے. پورا کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، دس از آہل رجا اینڈ کیسے ہیں آپ سبھی؟ آئی ہوپ کہ آپ فٹ اینڈ فائن ہوں گے اینڈ مزے میں ہوں گے. تو گائز آج کا جو ویڈیو کا ریئیکشن ہوگا وہ ہوگا ایک ڈاکٹر ذاکر نائک سے. ایک آدمی نے سوال کیا ہے کہ بیسیکلی جو ہماری جو اسلامک کتابیں ہیں وہ 4 ہیں. پہلا ہے آپ کا توریت، انجیل، زبور اور قرآن. یہ 4 کتابیں ہیں. تو جو مولوی ہیں، جو علماء ہیں، وہ آخر ان کتابوں کے بارے میں بتاتے کیوں نہیں ہے کہ ہمیں اسے پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں جاننی چاہیے؟ وہ آخر ان کتابوں سے دور ہمیں کیوں رکھتے ہیں اور کیوں نہیں بولتے کہ ہمیں اسے پڑھنا چاہیے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا بہت ہی بہترین اور بہت ہی سٹیک جواب دیے ہیں. اور وہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی صاف اور ستھرا اور یہ کلیئر سوال ہے اور بہت ہی اچھا سوال ہے. تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ آخر اس سوال کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک کس طرح سے دیتے ہیں. تو اس ویڈیو میں بنے رہیے. اور ایک بار آپ کو اور بتا دوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ریلیٹڈ اور ایسے اسلامک سے ریلیٹڈ کوشچن اور آنسر کا جو ویڈیو ہے وہ اس چینل پہ ملتا ہے. تو گائز اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور نالج اچھا ملے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو بنا کسی دیری کے. السلام علیکم. میرا نام عمران گل ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچر ہوں اور لاہور سے ہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بائبل مقدس کا کئی دفعہ مطالعہ کیا ہے اور چونکہ میں تھیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا ہے. اور اس میں جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا. آپ کا نام کیا آپ نے کہا؟ عمران گل. آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ آئی ایم کرسچن. کرسچن، اوکے. کیا سوال واپس سے دہرائیں گے؟ جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم اے ٹیچر، تھیولوجیکل ٹیچر، اور بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا. لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انجیل، توریت اور زبور میں ہدایت ہے، نور ہے، راستہ ہے، سیدھی راہ ہے. سورہ مائدہ ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ مومن ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو کیوں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ جب تک ان چاروں کتابوں پہ ایمان نہ لے آئیں ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی اسلامک کتابیں ہیں، آپ ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہیں. تو پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں اور ہمارے مولانا حضرات کیوں ڈسکریج کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کتابوں کو آپ نہ پڑھیں؟ ماشاءاللہ بھائی عمران کا بہت اچھا سوال، ایک دم صاف ستھرا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر ہے، تورات، زبور، انجیل، ہدایت کی کتابیں بالکل صحیح فرماتے ہیں 100%. مائدہ، بقرہ، بہت جگہ پہ بالکل صحیح. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں یہ کتابیں ہیں تو مسلمان کے مولانا مسلمان کو پڑھنے کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ یہ کتابیں موجود ہی نہیں ہیں. تورات، زبور، انجیل موجود ہی نہیں. ابھی جو موجود ہے اس کی بگڑی ہوئی شکل. آج کے تاریخ میں آپ ٹیچر ہیں، میں طالب علم ہوں. آپ ٹیچر ہیں نا؟ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن. جو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ انجیل اللہ کی وحی ہے، ہم انجیل کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام، بائبل کو نہیں. بائبل کیا ہے؟ بائبل یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ فرام دا ورڈ بیبلوس. بیبلوس مطلب
किताबों का किताब, सही क्या नहीं? आप टीचर है, Yeah. हम मानते हैं, अब आप पढ़ेंगे, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक. हमें चाहिए गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जीसस ईसा अलैहि सलाम. वो किधर है? हम वो चाहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम पे वही नाजिल की. इसीलिए कभी कभी मुसलमान गलत करते. मैं कहता हूं बाइबल, तो अरबी में तर्जुमा करते इंजिल. मैं बोला भाई साहब, मैंने बाइबल का इंजिल नहीं कहा. ये बाइबल जो है वो इंजिल नहीं है. अल्लाह ताला ने कहा कि जितने किताब पहले आए उनको महफूज रखने का वादा ही नहीं किया. लेकिन सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाते, हमने नाजिल किया जिक्र और हम इसकी हिफाजत करेंगे. क्योंकि ये आखिरी कलाम है. जितने कलाम मैंने पहले कह चुका हूं मेरे आंसर में, जितने कलाम कुरान मजीद के पहले आए, किताब में लिखा है 4, तोरा, ज़बूर, इंजील, कुरान. लेकिन सूरह रास सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में लिखा है कि हमने हर दौर में एक किताब नाजिल की, बोली कुल्ली अजलिन किताब, बराबर. लेकिन जितने भी किताब कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थे, ताक़यामत तक ने, और सिर्फ एक लोगों के लिए थे. मिसाल के तौर पे जो इंजील जो नाजिल की गई थी, कुरान में लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम एक पैगंबर भेजे गए थे बनी इस्राइल के लिए. बाइबल में भी उसका जिक्र है. तो वो महदूद था. तो जब महदूद है, अल्लाह ने उसे सही नहीं समझा कि उसे महफूज रखे. आप टीचर है, अच्छा एडिशन आ गई, किताब के एडिशन, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन. भाई साहब टीचर है कॉलेज में, बराबर. आप बोलेंगे बच्चे लोग फर्स्ट एडिशन पढ़ो, आप क्या बोलेंगे लेटेस्ट एडिशन पढ़ो. आप बोलेंगे अपने बच्चे लोग को अरे फर्स्ट एडिशन पढ़ो. हाँ, कुछ लोग को बोलेंगे तहकीक के लिए. आप बोलेंगे सब बच्चे पहली एडिशन पढ़ो. कोई बोलेगा? पाकिस्तान में कोई टीचर बोलेगा? हाँ कि नहीं? आप क्या बोलेंगे? लेटेस्ट एडिशन पढ़ो. अगर साइंस पढ़ा रहे लेटेस्ट पढ़ो. कुछ लोग रिसर्च करते हैं, कुछ लोग रिसर्च करते. आप रिसर्च करो किस तरीके से फर्स्ट एडिशन है तो आप पढ़ेंगे. मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैंने पढ़ा बाइबल. मैं बोलता हूं पूरी बाइबल पढ़ना, वक्त जाया मत करो. पागल बने क्या? मैं पढ़ा हूं, आप लोग क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूं, समझे आप? क्योंकि इंजील हिदायत की किताब है, लेकिन उस वक्त के लिए, और आज महफूज नहीं है. आज कितने किस्म के बाइबल है? बोलो कितने किस्म के बाइबल है? आप जानते हैं? there are how many versions of the Bible? There are quite a few versions. Quite a few. आपका फ्यू का लिमिट क्या है? हाईएस्ट नंबर क्या है फ्यू का? क्योंकि यहाँ 1 सेकंड होता है 1 घंटा. फ्यू मतलब कितना? जितना भी हो. I don't know. नहीं, आपके हिसाब से भाई, मैं पंजाब में, मुझे पता नहीं. वो आपका भाई 1 सेकंड 1 घंटा बोलता है. जी. आपका फ्यू कितना होता है? 1000, 10,000? Less than 100. लेस देन 100. गलत. मेरे लाइब्रेरी में 200 बाइबल है, 240. There are thousands of versions of the Bible. According to Christian scholars, there are 24,000 different manuscripts of the Bible and no two identical. 24,000 manuscripts है, 24,000, और कोई भी दो सेम नहीं है. मेरे लाइब्रेरी में बंबई में 200, तकरीबन 240, 250 बाइबल थे. Less than 100, few. कुरान, अरबी कुरान कितने? एक. तर्जुमा हुई है अलग. ये जो बाइबल का तर्जुमा नहीं, वर्जन, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है. तो कौन सा पढ़ने बोलूंगा मैं उनको? तो सर जो ओरिजिनल है वो पढ़ें आप जाके. जो और ओरिजिनल है ही नहीं. आप कहते हैं ना, मैंने कहता हूं क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं. भाई आप क्रिश्चियन स्कॉलर्स को पढ़े ही नहीं, और मैं तहकीक करूंगा ना, ओरिजिनल है ही नहीं. 24,000 ये बोल सकते ये ओरिजिनल से सबसे करीब है. अच्छा, कुछ लोग को पढ़ना चाहिए. मैं पढ़ता हूं ना. मैं पूछता हूं कि आप स्कूल के अंदर बोलेंगे, कॉलेज में बोलेंगे, ओ भाई साहब आज 20th एडिशन चल रहा है किताब का, आप साइंस पढ़ रहे, 1 to 20 सब पढ़ो. बोलेंगे क्या आप? कुछ लोग को बोलेंगे. अगर आपको तहकीक करने का है किस तरीके से एडिशन है, वो मैं हूं ना पढ़ने के लिए. मैं क्यों बाकी लोग को बोलूंगा? 2 बिलियन लोग को. आपको जवाब मिल गया? क्योंकि ये सब किताब चेंज की गई है. लेकिन सर कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि ये तब्दील होगी. एक आयत कुरान में नहीं है जो कहे कि ये तब्दील हो गई है, बल्कि वहां पे तो अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स में है कि इसमें राह है, हिदायत है, नूर है. एक आयत क्या बोलता है? एक आयत नहीं या तब्दील हुई, एक आयत. हदीस में होगा, लेकिन अभी मैं बोलता हूं. सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79. फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला. वो लोग को कहो जो अपने हाथ से बुक लिखते हैं, किताब लिखते हैं, और कहते हैं अल्लाह से है. कुरान क्या है? तब्दीली की बात तो नहीं ना की कि तब्दील हो गई. अरे कुरान से हाथ से लिखते, वही तो बोला है ना मैं. ओरिजिनल मौजूद ही नहीं. ये सब जितने बाइबल है हाथ से लिखे गए इंसान के, और इसका जिक्र ये बाइबल क्या ही जा रहा है. ये जिक्र जो है बाइबल क्या ही है. सर कैन आई से समथिंग?
नो यू कैन नॉट से, इतने सब speak. प्लीज डोंट से, क्योंकि इफ यू आर अ गुड प्रोफेसर, मैं आपको 30 बार पूछा, आप बोलेंगे चारों एडिशन पढ़ने का, चुप बेटे, चुप बेटे। आप अगर टीचर है, आपका साइंस की 20वीं एडिशन चल रही है, आप अपने स्टूडेंट से बोलेंगे, सब स्टूडेंट से पहला एडिशन 1 to 19 भी पढ़ो, जवाब ही नहीं दे रहे, उसका मतलब आप सच्चे इंसान नहीं हैं। माफ करना, माफ करना, आप हक के इंसान नहीं है। आप जब फंस गए मुंह ही नहीं खोलते, दूसरी सवाल करते, एक आयत बताओ, आयत बताए, चुप बैठ गए। अरे भाई जरा तो तस्लीम करो, हाँ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, मैटर खत्म। सॉरी बोलने से इंसान छोटा नहीं होता। सर आप अपने मुताबिक बात करें ना, मैंने अच्छा भाई, क्या पंजाब में शिक्षा, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप साइंस पढ़ने जाते और 20th एडिशन पढ़ाई जाती, क्या आपके पंजाब में बोल, देखो हेल्थ मिनिस्टर बैठे यहाँ, एजुकेशन भी है, क्या आप सिखाते क्या भाई पहले 19 एडिशन पढ़ो, सिखाते क्या? ये दो जब फंस जाते ना, एक अक्लमंद इंसान क्या बोलेगा, कम से कम तस्लीम करेगा मैं फंस गया, मतलब कुछ तो इंटेलिजेंट है। वो बेवकूफ इंसान तस्लीम नहीं करेगा पूरी दुनिया के सामने, करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको। Sir, I respect you. I want to. Why you clear my respect me? question. What you're not respecting me? Sir. I have asked you a simple question. You as a teacher, I'm not a teacher. Will you tell your students to read the first 19th edition? You're not opening your mouth. लेकिन आम बुक में और बाइबल में फर्क है ना? कोई भी किताब हो भाई, बाइबल और कुरान में फर्क है ना? बिल्कुल सही। क्योंकि लैंग्वेज बाइबल और कुरान में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं बेवकूफों के मुसलमान को बोलूंगा बाइबल पढ़ो। हाँ, जहां आपको डिबेट करने का है, जहां दावा करने का, मैं आपको सिखाऊंगा कौन से वर्सेस पढ़ने का है। तो हम लोग का वक्त जाया नहीं करना चाहते। आप जब फंस जाते ना बाइबल, उसमें फर्क है, क्या फर्क है भाई? एडिशन एडिशन है। तो कुरान में जो लिखा है कि लोग अपने हाथ से किताब लिखते और कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो अल्लाह ताला उन पे फटकारता है। और आप जैसे लोग पढ़ते हैं और बेवकूफ बन जाते, हम जैसे लोग एनालाइज करते, हम भी पढ़ते, बाकी मुसलमान नहीं, मैं पढ़ता हूं, बाकी मुसलमान के ब्याह पे मैं पढ़ता हूं, मैं फर्ज किफाया कर रहा हूं, फर्ज किफाया। सर आपकी बात माने या कुरान मजीद की बात माने? कुरान मजीद में लिखा है, कुरान मजीद में लिखा है भाई, मैं कुरान मजीद की बात कर रहा हूं। कुरान मजीद कहता है, कुरान मजीद कहता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, को मुसलमानों लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाओ। कुरान मजीद कहता है तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। भले आपकी बाइबल बदली गई है, फिर भी मैं आपके बाइबल को पढ़ के यकसानियत निकालता हूं। आपके पादरी अगर कुरान को अटैक करते तो मैं डिफेंड करता हूं, नहीं तो मेरे जितने आप देखेंगे मेरे तकरीर है, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। आपके विलियम कैम्बेल अमेरिका से किताब लिखे कि कुरान में 38 साइंटिफिक एरर है, तो मुझे मजबूरन जाना पड़ा। मुझे तो ये ईयर 2000 है, मेरी उम्र सिर्फ 35 साल थी उस टाइम, और जाके डिबेट किया मैंने उससे। अल्हम्दुलिल्लाह उसने स्टेज पे तस्लीम किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतने गलतियां निकाले बाइबल में, मुझे फिर से बाइबल पढ़ना पड़ेगा। सच्चे इंसान थे, आप जैसे नहीं थे। मैंने क्या झूठ बोला आपसे? आप तो ह्यूमिलेट करते हैं अपने उन लोगों को जो क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बड़े अच्छे तरीके से सवाल पूछा, यू स्टार्टेड ह्यूमिलेटिंग मी। मैं ये सिंपली कह रहा हूं कि भाई आप ये जो कर रहे हैं ना, आप जो कर रहे हैं ना, बहस कर रहे हैं, मैं आपको मौका दे रहा हूं, माइक बंद नहीं कर रहा हूं। इतनी देर 12:30 बजे कोई क्रिश्चियन मिशनरी 20,000 के मजमे में अलाउ करेगा क्वेश्चन आंसर करने के लिए? वो तो सिर्फ तकरीर करते, ह्यूमिलेट कर रहे। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। कहने आपने बोलो एक आयत दिखाओ, मैंने जवाब दिया। आप ये तो बोलना चाहिए था माशाअल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक, थैंक यू। आप थैंक यू भी नहीं बोल रहे। थैंक यू। रात के 12:30 बजे हजारों लोग का टाइम बर्बाद कर रहे और बोलते ह्यूमिलेट कर रहे। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे। थैंक यू बोलने के बदले ह्यूमिलेट बोल रहे। थैंक यू, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। जवाब तो दे भी दिया आपके, एक सवाल का नहीं, तीनों सवाल का जवाब दिया। क्योंकि बाइबल ये जो बिगड़ी हुई फॉर्म है इंजील का, कुरान में कहा नहीं निकला का बाइबल अल्लाह की किताब है, कुरान में निकला इंजील। आज इंजील ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद ही नहीं है। आज जो बाइबल है इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। उसके लिए कुछ मुसलमान तहकीक करना चाहिए, मैं करता हूं, और पादरियों से डिबेट करना चाहिए बड़े बड़े, ताकि वो दीन की तरफ लेके आए। सब मुसलमान को वक्त जाया करने की जरूरत ही नहीं। और जहां आपने कहा एक भी आयत बताओ जो बिगड़ गई, वो तो कह दिया क्या लोग लिखते हैं किताब। आपके 2-3 सवाल सबका जवाब दिया, आखिर में आपने थैंक यू बोले, गुड, अल्लाह आपको हिदायत दे, आई लव यू, मे अल्लाह गाइड यू सो दैट यू कम ऑन द स्ट्रेट पाथ। थैंक यू वेरी मच, आई विल आल्सो प्रे फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो
अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो में जो है डॉक्टर जाकिर नाइक थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे इस आदमी पे, क्योंकि ये आदमी जो है बहस करने लगा था बाद में चलकर। तो गाइस इस वीडियो में अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बिना सब्सक्राइब किए मत जाए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही जो है सवाल जवाब का, जो इस्लामिक सवाल जवाब है, इसका वीडियो आता रहेगा। तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो गाइस चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।